हाय गाइस, गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। यस सर। इलेक्ट्रिसिटी ना, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम आज? क्या करना है? सर 1 में थोड़े डाउट्स है और 2 और 3 में भी। ठीक है, आई थिंक एक बार तो डिस्कस हुआ है 1 और 2 और 3 पूरा। 1 में बताओ कौन से डाउट्स हैं। I sent the doubts sir on chat. वन का 79, 1 का 54, 55, 57, 58, 65, 95, श्लोक 15 15 कर रहा हूँ। श्लोक पहले तेरा डाउट कर रहा हूँ। 1 का क्वेश्चन 50, 1 का क्वेश्चन 15 है। 2 नॉन आइडियल बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये वाला है ना। पहला वाला रॉन्ग होना चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इक्विवेलेंट ईएमएफ इज लार्जर देन ईदर ऑफ द टू एंड्स। नहीं, तो जब ये सीरीज बोलते हैं ना, देन दे मीन दैट द बैटरीज आर फेसिंग द सेम वे, अच्छा लाइक बोथ पॉइंटिंग टू द राइट टाइप्स। ठीक है, 27 आदित्य, तुम्हारा 27 है डाउट, वो कर रहा हूँ। N identical cells are joined in series with its two cells A and B in the loop with reverse polarities. EMF of each cell is E and the potential difference across cell A और B is here. ठीक है, देख N cells तुमने लगा लिए और उसमें से 2 का पोलैरिटी रिवर्स हो गया है ना, और बाकी सब इंटरनल रेजिस्टेंस है, N इंटरनल रेजिस्टेंसेस है। तो पूरा चीज के अंदर कितना रेजिस्टेंस हो गया? NR। फॉलोइंग? यस सर। और पूरा लूप के अंदर EMF कितना हो गया? If there are N batteries, but out of those N batteries, 2 of them are pointing the other way, while the rest N minus 2 are pointing in one way. Let's say N minus 2 are pointing clockwise, running clockwise, and the 2 A and B batteries are running anti-clockwise. तो total EMF कितना आ गया लूप का तेरा? What do you think? लिख के दिखाता हूँ तुमको। Can you see the screen? Yes sir. Okay, so what you have is, you have batteries like this, right? So they are all pointing this way. So there is many of them. N minus 2 of them are pointing this way, and then there is 2 whose polarity has been reversed. Understand? And obviously there were N resistors which I have all just joined, right? So this is your loop. So what is this total EMF then? You can add the battery, right? So if this is E, this is E, that's 2E, then 3E, and so on. So there is N minus 2 E,
plus 2 of minus E. Do you understand this equation? Yes, sir. So what do you get? N minus 4E. Fine. Yeah. So it's effectively one battery of EMF N minus 4E and one resistance of resistance NR. That's your circuit now. So what's the current in the circuit? Fine. Total EMF by total resistance. Yes, sir. Then you are asked for how much is the potential difference across any one battery, right? Across any one of the batteries. So that you already know. Across either of these two, right? Either of A or B. So in which direction will the current run in A or B? Now, if you look at in A in detail, A is this battery, let's say. This is your A battery. And A has its own internal resistance also. Although we had aggregated the resistances to make it easier for us, right? But otherwise they are with their own batteries. So that means, let's see. That means what? And which direction is the current running in this battery? This direction, right? I. Yes, sir. We already found I. So then if you had to find the potential difference across the battery, what does that mean? Across the battery means this is your whole battery, right? So it's here and here. Let's say the ends are in, not let me take them to be P and Q. So you know how to do that, right? You start at VP, Yes, sir. Yes. then you go minus E, then you go minus IR, then you will land at VP, VQ. So VP minus VQ is E plus IR. You anyway know that when a battery is charged, getting charged, when the current is in the reverse direction, it has a bigger potential difference than its EMF. That's E plus IR. So now you can find E plus IR, right? Yeah. Okay, Yeah. cool. ये हो गया. रोहन 79 तुम्हारा डाउट है, वो कर रहा हूँ. Yes. 79. Where is 79? 79. Ammeter A of finite resistance and resistor R are joined in series to an ideal cell C. Potentiometer P is joined in parallel to R. The ammeter reading is I0 and the potentiometer reading is V0. P is now replaced by a voltmeter of finite resistance. The ammeter reading now is I and the voltmeter reading is V. हाँ, इसमें क्या डाउट है? देखो, पोटेंशियोमीटर को बेसिकली तुम्हें एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह ट्रीट करना है. मीनिंग तो उसके अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करना. इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मान लो. बेसिकली इन अ वे उधर कोई करंट नहीं जाएगा. पोटेंशियोमीटर का बेसिक आइडिया क्या था कि जब मेजरमेंट हो रहा होता था तब करंट नहीं होता था उधर में. ओके सर, ठीक है. तो हम इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं एज इफ इट्स अ वोल्टमीटर विद ट्रूली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. ओके. वो मतलब प्रॉपर्ली आईआर ही बता रहा है. यानी उसकी जो पहले केस में रीडिंग इन्होंने बताई है V0, दैट इज लिटरली I0 R, क्योंकि उसकी अपनी तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंफिनिटी है. तो इधर ही बता देता हूँ मैं. ये है तुम्हारा आइडियल सेल सी. इधर है तुम्हारा एमीटर R, MMP. This is so initially the potentiometer. So you can treat the potentiometer as a perfect resistance, infinite resistance. तो पहला केस में वो बोल रहा है कि एमीटर में रीडिंग I0 है और इसका रीडिंग V0 है. तो इसका रीडिंग तो ऑब्वियसली ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, which is literally I0 R, whatever this R is. So that's your first relation. And in the second part, this is now replaced by a voltmeter with some resistance. So obviously now the current that comes in here will partially go here and partially go here, right? So now you can say कि अगर जो voltmeter लगाया है उसकी resistance अगर अब ले लें R, तो वो इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा. ये उसकी रेजिस्टेंस है तो वोल्टमीटर, बट मैं रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ केवल. तो अगर ये R है और वोल्टमीटर R है, तो ये पूरा जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे क्लस्टर, ये RR बाय R प्लस R हो गया, राइट?
तो ऑब्वियसली सर्किट का करंट चेंज हो गया, लिख लो जैसे पहले लिखा होगा ईएमएफ के टर्म्स में। अब यहाँ पे रीडिंग आई आ रही है, और ये जो रीडिंग होगी, जो वोल्ट मीटर, जो ये अब वोल्ट मीटर बताएगा, वो एक्चुअली उसका अपना आईआर होगा। मीनिंग जब ये मेन करंट आई आता है इधर से, ये वाला, तो इसमें से कुछ आई आर इधर जाता है और आई आर इधर जाता है। तो अब जो रीडिंग वी ये दिखा रहा है वो है जो करंट इसमें जा रहा है इनटू इसका रेजिस्टेंस। ये समझे? हाँ सर। तो वो दोनों को सेट कर लो उसके साथ, वेरिएबल्स के साथ, तो आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, फिर हृदय तुम्हारा डाउट है 54 कर रहा हूँ। Yes, sir. 54 का है। Straight conductor of uniform cross section carries a current I. Let S equal to specific charge of an electron. The magnitude of momentum of all electrons per unit length of conductor due to the drift velocity only is. ठीक है, मोमेंटम निकालना है ना सारे इलेक्ट्रॉन्स का तेरे को। Yes. तो ये कंडक्टर है, मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका लेंथ एल ले लो। तो मान लो इसमें कैरियर डेंसिटी एन है, एन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रिक करंट के स्टार्ट में डिस्कस किया। Yes, sir. और सारे के सारे वी ड्रिफ्ट से जा रहे हैं, बराबर। Hmm. तो किसी एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वीडी। Yes. तो सारों का कितना हो गया, सारों का हो जाएगा, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, एन ए एल Hmm. इंटू एम वी डी, बराबर। Yes, sir. ये हो गया, ये चीज तुम्हें निकालनी है। लेकिन अब इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ करंट भी दिया हुआ है तुम्हें, आई सिंबल तुम यूज कर सकते हो, और स्पेसिफिक चार्ज तुम यूज कर सकते हो। स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो बेसिकली चार्ज टू मास रेशियो होता है, लिखा ही उधर, नहीं लिखा नहीं है लेकिन ये ऐसा होता है, ठीक है। और करंट तुम्हें पता है जे ए होता है और जे एन ई वी डी होता है, बराबर। Hmm. तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको ई से मल्टीप्लाई, ई से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जो एन ई वी डी बन गया, इसको जे कर देते हैं। तो अब जे ए एल एम बाई ई आ गया, ई बाय एम तो यही है, Yes. तो जे ए एल बाय एस आ गया। और जे ए खुद क्या होता है, I. करंट। तो करंट एल पता नहीं क्यों बच रहा है, एल नहीं बचना चाहिए ना, Yes, sir. कहीं ना कहीं एल रह गया होगा मेरा। क्या निकालना है इसमें, पर यूनिट लेंथ ही तो निकालना है, तो एल से डिवाइड कर देंगे बस, टेंशन क्या है। आई एल बाय एस, दिस इज द टोटल मोमेंटम इन लेंथ एल, सो व्हाट इज द मोमेंटम पर यूनिट लेंथ, आई बाय एस, Yes, sir. फाइन, Hmm. ओके। वंश तुम्हारा डाउट है 75। वंश आर यू देयर? नो, Yes, sir. ओके। ये मिली एमीटर वाला ना, मिली एमीटर जिसका रेंज दिया हुआ है। Yes, sir. ठीक है, लेट मी जस्ट, सही ना। ये ठीक है, क्या करने को बोल रहे हैं इसमें, is joined in a circuit as shown. The meter gives full scale deflection for current I when A and B are used as its terminals. The meter gives full scale deflection for current I when A and B are used as its terminals. Current enters at A and leaves at B. The value of I is, ठीक है। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि जब करंट इधर से एंटर करता है और इधर से एग्जिट करता है, you leave C aside, है ना, C is not connected to anything. So basically when you buy this as a device, you will get this as the thing,
and they will have kind of folded this into the circuit. This is of no use, right? So these are the two terminals of your device. Getting it? Yes, sir. ठीक है, तो वो कह रहा है कि जब आई करंट जाता है तो इसमें FSD दिखता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखता है. तो अब करंट का वैल्यू बताना है. अब इसमें जो मिली एमीटर ऊपर लगा है उसका रेंज दिया हुआ है 10 mA, मीनिंग दैट इफ 10 mA करंट गोज इनटू द ओनली द मिली एमीटर, जस्ट दिस, यानी अगर इधर 10 mA आया तो ये पूरा FSD दे देगा. Yes, sir. नीडल विल गो ऑल द वे टू द राइट. तो इधर 10 mA आएगा तो इधर भी कुछ जाएगा, मतलब आई करंट का बाकी पार्ट इसमें से जाएगा, I minus 10 mA. मेक सेंस? Yes, sir. And then this 10 mA will come from here and come through here and meet this and eventually come out as I, right? So all we have to do is write KVL in the upper loop. Only KVL will do, sir. Yeah, obviously, because the only thing unknown is this. Everything else is known. You know the resistance Okay. of this thing also. Fine. So this basically the idea was that by giving you the full scale deflection of the milliammeter, which is at the top, they have indirectly told you how much current should go in the upper branch. So if I enters, 10 must go up in the upper branch and the remainder must go from here, and then you can assign the variables and do KVL and solve for I. Make sense? Yes, sir. Okay, fine. Okay, then हृदय तुम्हारा 55 हेड आउट, क्या हो रहा है 55? Yes, sir. 55 में तो इंटीग्रेट करना है, करंट डेंसिटी का फंक्शन दिया हुआ है और टोटल करंट निकालना है. वायर का क्रॉस सेक्शन सर्कल होगा और करंट डेंसिटी फंक्शन तुम देख रहे हो, तो पहले जो है वो 0 से R/2 तक जब जा रहे हैं तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, Yes. बट नेगेटिव करंट है. गेटिंग इट? Why negative? Because if you put x as something less than R/2, then you have something less than half minus 1. Acha, okay. Yes. It's a negative current. So it's current going, let's say we look at the cross section and we put a convention that any current coming towards me will be taken as a positive current. So up till here, this is R/2 and this is R. So you have this function, you have what, J naught x by R minus 1 from here to here in this region, and then afterwards from that point onwards till the end you have this function, right? So, sir, after integrating, we're just supposed to subtract them, right? They will automatically get subtracted. Why don't you just simply say the total current by definition is integral J dot dA, right? Yeah. And the A that you must pick is a ring, right? So you go to some arbitrary R and you pick a ring of width dr. So essentially what you are doing is J, मतलब अब तो multiply हो जाएगा 2 pi R dr. Make sense? Mm-hmm. Or x dx, since this is written in terms of x. So you can say x. Fine, call this x also. And then as you go from 0 to R, obviously this function J will change, na? Once you go from, in a way, it will be one function from 0 to R/2 and another function from R/2 to R. Okay, sir. And this is already a negative number. You don't have to subtract anything. Yes. You are integrating from 0 to R by definition, which is essentially 0 to R/2 plus R/2 to R. And this will come out to be a negative number on its own. Yes, sir. Fine. Mm-hmm. Okay.
Then you have 57 also as doubt. What amount of heat will be generated in a coil of resistance R due to a charge Q passing through if the current in the coil decreases to zero uniformly during? Okay. तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये करना होता है. You have to kind of decode the question. There is a bunch of things going on. Let me just take this. ठीक है. So bunch of things. First, this word is the most important here. ठीक है. The current in the coil decreases to zero uniformly. What does that mean? That Rate. basically rate. So it's a uniform rate. Uniform rate always means a linear thing. Yes. Meaning to say if it goes to half in some time, it goes to another half in the same amount of time, right? It decreases in uniform steps. So which means your current is as a function of time is, can I say, some AT plus B? Do you agree? Yes, sir. When you have to guess a linear function, you guess it like this. This is the way to guess a linear function, the default linear function. Make sense? Yes, sir. This is just y equal to mx plus c. Mm-hmm. Now you have two things which you do not know, a and b. So obviously there must be some information given. Uniformly तो use हो गया. तो एक information ये दिया हुआ है कि total time delta t में Q charge ये current pass कर देता है. This current is able to transfer Q charge in delta t time, which means that since current is obviously dx by dt, not dx by dt, dq by dt, I can first apply this condition that Q charge goes in delta t time. Make sense? Yes. So I will say AT plus B dt equals dq. Q charge goes in delta t time. Fine. Yes, sir. This will give me one relation between A and B. I mean, you can clearly see what it is. It is A delta t square by 2 plus B delta t equals to Q. Make sense? Yes. So that's your first equation. The second condition is this current in the coil decreases to zero in that same amount of time, right? Yes, sir. Which means this AT plus B must go to zero also in delta t time, which is to say A delta t plus B must be zero. Yes. The current must become zero by delta t time, and in that delta t time it has also transferred Q charge. So now you have two conditions, so you can solve for both A and B. Okay, sir. So you know the entire current as a function of time. Now you simply have to say what is the total heat generated in this time, in this resistance. So obviously power is what? IT square R, right? But power is itself D, let's say heat by dt. So D heat energy or whatever you might want to call it. अब ये तो तुम्हारा आ ही गया है. AT plus B में तो A और B पता ही है. Mm-hmm. TT बस. So that's it. Total heat generated in this time. Fine. And so, yeah, and so since it's given कि linear है, so we can eliminate the lon वाले answers, right? Options. हाँ, obviously तुम्हें ये पता ही है कि लॉन वाला नहीं आना चाहिए, पॉलिनोमियल ही आना चाहिए क्योंकि लीनियर करंट Okay. वो भी ट्रू है, एब्सोल्युटली ट्रू. ठीक है. ओके, देन 83. युवराज तुम्हारा डाउट है 83. युवराज यू देयर? Yes, sir.
An ammeter and a voltmeter are joined in series to a cell. Their readings are A and B respectively. If a resistance is now joined in parallel with the voltmeter. Okay. So let's say this is what this is exercise 1 ka 83. You have an ammeter, and since nothing is given about either the ammeter or the voltmeter or the cell, we will take the worst possible scenario, meaning to say they are all non-ideal. You understand? Meaning this might also have some internal resistance, this might also have some internal resistance, and this battery might also have some internal resistance. Getting it? Yes, sir. Okay, so obviously I don't know what those values are, but let's see if the problem can be done by just that much. Okay, so what I need to do is, this is too small. I will say that what else is given to me? Their readings are A and B respectively. Fine. So A and B का मतलब हो गया the current is itself A. That is the meaning of that reading. And if the internal resistance of the voltmeter is R, then the reading V is IR. Make sense? Which is AR in this case. ठीक है? अब एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं पैरेलल में विद द वोल्टमीटर. तो अब एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं पैरेलल में विद द वोल्टमीटर. Now you obviously know that putting a resistance in parallel with another resistance causes the overall resistance in that region to decrease. Yes, sir. Which means the total resistance of the circuit will also decrease because this is in series, right? हाँ सर, करंट इंक्रीज होगा. तो करंट तो इंक्रीज हो ही जाएगा, यानी जो A का रीडिंग है वो बढ़ जाएगा. But as for V, since the current has increased, but now there is a parallel path, so some of that current must be going through the voltmeter and the remainder must be going through the parallel thing. So now, and since the reading of the voltmeter is the current through the voltmeter into its resistance, I have to think about what can possibly occur here in the voltmeter, right? So there are basically two possibilities. We could have put this resistance bigger than R or smaller than R, right? And you can take both of those cases and figure out how much current goes here and how much current goes here and how much IR increases or decreases. Fine, makes sense. Yes, sir. Another way to look at it would be, see, okay, but I don't know whether the battery is ideal. That's one problem. If the battery was ideal, then it could be much quicker, because since the total potential difference across the ammeter and the voltmeter would be the fixed quantity, EMF, then since the current has increased, I could say that the IR in the ammeter would be bigger. The drop across the ammeter would be bigger if the ammeter is non-ideal. And so this would be a smaller drop because the total is constant. But that's not given, nothing is given. So I think the only option is to take cases here. In one case, you can take the parallel to be smaller than voltmeter and see how that splits the current. And in one case, you can take it to be bigger than that. In any case, think of it this way. Let's say now the current has increased to A prime, right? I symbol le lete, I prime, which is bigger than I. So that part is already answered, right? Now that I prime, when it arrives here, has to go in the two paths. So obviously, how much of that will go through the voltmeter? That will be I prime into R by R plus R. Agreed? Yes, sir. It will be in inverse proportion to the resistance of the voltmeter. That is how much current will go through the voltmeter. And so the potential difference across the voltmeter will be this current that goes through the voltmeter into the voltmeter resistance. And so now you must compare this to this. Do you understand? Yes, sir. है ना, पिछला वाला V से, तो मुझे कंपेयर करना है कि I प्राइम जो है, I प्राइम R by R plus R has to be compared to IR.
obviously I know that I prime is bigger than I. ठीक है, so मतलब मैं पूरा इक्वेशन भी लिखना चाह रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आई कैन अवॉइड इट, बट मे बी आई कांट अवॉइड इट, लेट्स सी। तो ये आर तो कैंसिल कर देते हैं। अब बेसिकली वी हैव टू फिगर आउट वेदर इट्स दिस साइन और दिस साइन, राइट, बीच में। Yes, sir. तो अभी मैंने कुछ रखा नहीं है, छोड़ देते हैं। अभी इसको इससे कंपेयर करना है, तो मतलब कि आर बाय आर प्लस आर इंटू आई प्राइम को कंपेयर करना है आई से। नाउ दैट इज नॉट अ कंपैरिजन वी कैन मेक, व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली आर बाय आर प्लस आर इज स्मॉलर देन 1, हाँ sir. बट आई प्राइम इज बिगर देन आई, Yes, sir. so it's not possible to directly compare. It could be that r by r plus r is so much smaller that it negates the effect of I prime being bigger than I. So I suppose you will have to write a kind of an equation here where you would have said कि let's say the battery resistance and the ammeter resistance मिला के total resistance जो है उसको बोल दो कुछ R circuit. So then your initial current in the circuit would have been the battery EMF divided by the R circuit plus the voltmeter resistance, right? पहले ये लगाने से पहले। हाँ sir. और अब तुम्हारे पास क्या है? ईएमएफ, आरसी तो आरसी रहेगा क्योंकि ये दोनों तो अभी भी सीरीज में है, लेकिन साथ में उधर आ जाएगा आर आर बाय आर प्लस आर, फाइन। Yes, sir. तो अब ये सब घुसा लो यहाँ पे और कंपेयर करो। अब कंपेयर किया जा सकता है, मतलब अब मुझे किसको कंपेयर करना है? आई प्राइम इंटू दिस ना, तो मतलब ई बाय आर सी प्लस आर आर बाय आर प्लस आर, ये तो आई प्राइम है, एंड दिस वाज विद आर इंटू आर प्लस आर, ये वाला, एंड दिस हैज टू बी कंपेयर्ड टू सिंपली आई विच इज ई बाय आर सी प्लस आर। गेटिंग इट? दिस इज योर आई, this is your I prime, and this is that. So I have to figure out whether this is bigger, this is bigger, this is bigger, right? And all the quantities are positive, so anything can be cross multiplied without changing any of these signs. Fine. So compare कर लो फिर। अब आई थिंक इक्वेशन टाइप ही है जो सॉल्व करके जिसमें तुम कुछ इनइक्वालिटी बना के कुछ आर्ग्यू कर पाओगे कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव और समथिंग लाइक दैट, आई सपोज। ये कैंसिल हो गया, इसको इधर ले लो तो हो गया आर आर सी प्लस आर, और उधर आ गया ये नीचे का आर प्लस आर इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो आर सी आर प्लस आर आर, राइट। और इसको भी अगर मैं इधर ले आऊं तो बेसिकली मुझे इस पूरी क्वांटिटी को कंपेयर करना है जीरो से। गेटिंग इट? Yes, sir. तो ये हो गया आर आर सी प्लस आर आर माइनस आर आर सी माइनस आर आर सी, ओ ये माइनस हो जाना चाहिए ना, तभी माइनस आर आर है ना। यस, तो ये कट गया, कुछ और भी कट रहा है, आर आर सी भी कट रहा है, राइट। तो बस मेरे पास माइनस आर आर सी बच रहा है विच इज क्लियरली लेस देन जीरो, राइट, विच मीन्स यहाँ पे ये वाला साइन है, विच मीन्स आई प्राइम, विच मीन्स द वी प्राइम is lesser than V. So the reading across the voltmeter ought to decrease. ठीक है, ये क्या आंसर है इसका? हाँ सर, डिक्रीज हुआ हम्म, सर। मैं सोच आइडियल केस आइडियल बैटरी कंसीडर करते हो तो फिर कैसे बताया था? आइडियल अगर मैं करता तो इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो बैटरी के अक्रॉस उसका ईएमएफ ही होता, तो फिर इन दोनों के अक्रॉस भी ईएमएफ ही होना चाहिए था बाय केवीएल। यस सर। तो फिर मैं ये कह देता कि जब करंट बढ़ गया है तो अब क्योंकि करंट बढ़ने से इसके अंदर का आईआर बढ़ गया होगा तो इधर का कम हो जाना चाहिए क्योंकि सम तो ई ही रहने वाला है। यस सर।
तो उससे पता चलता डायरेक्टली कि इसकी रीडिंग के साथ क्या हुआ अगर करंट बढ़ेगा, राइट? हाँ हाँ सर। वो डायरेक्ट आंसर हो जाता है। हालांकि आंसर अभी भी वही आ रहा है ना, यस सर। आंसर उस केस में भी सेम आ रहा है। मैं डायरेक्टली कह पा रहा हूँ उसमें कि जब करंट बढ़ेगा तो इसका जो अपना आई आर है, इसका भी तो कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो इसके अक्रॉस एक आई आर होगा, तो अब वो आई आर बड़ा हो गया होगा क्योंकि आई बड़ा है, लेकिन टोटल ई ही होना चाहिए यहां से यहां तक। तो नाउ दिस टेक्स द मेजर चंक ऑफ इट, सो दिस इज लेफ्ट विद द स्मॉलर चंक ऑफ इट, सो द रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर शुड डिक्रीज एज द करंट इंक्रीजेस। मे बी इस प्रॉब्लम में आइडियल बैटरी लेके ही करना है, तो हम ये सब बाईपास कर सकते हैं फिर, ठीक है। बट अगर नहीं भी है तो जनरल केस में प्रूव तो हो ही जा रहा है क्लियरली, कोई इशू नहीं है ऐसा, फाइन। अच्छा, तो फिर सर 84 एक्सरसाइज 1 कौन सा 84 84? When an ammeter of negligible internal resistance is inserted in series with the circuit, it reads 1A. ये जो ड्राइंग है ना वहां पर, उसका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन से। ओके सर बाजू में जो ड्राइंग बनी हुई है ना, उसका कोई लेना देना नहीं है क्लियरली, क्योंकि उधर 12 वोल्ट लिखा है, एक्स वाई लिखा है, क्वेश्चन में ना 12 है ना एक्स है ना वाई है। यस सर मैच ही नहीं कर रहा था डायग्राम। उसको जाने दो, सीधे बस क्वेश्चन को पढ़ो कि एमीटर है नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस का, उसको सीरीज में लगा दिया सर्किट, एक सर्किट में, तो उसमें 1 एम्पियर करंट आ रहा है। फिर एक वोल्ट मीटर लाया जिसका प्रैक्टिकली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, उसको एक्स के अक्रॉस लगा, नहीं एक्स तो दिया हुआ ही है इसमें, आई डोंट नो व्हाट वाई इज सपोज्ड टू बी, एक्स तो दिया है, तो वहां पे 1 वोल्ट है। देन द पॉइंट्स ए एंड बी आर शॉर्टेड बाय, अरे छोड़ दो यार ये क्वेश्चन, ये पता नहीं आधा अधूरा उठाया है, ए और बी भी नहीं दिए हुए सर्किट में, कौन से, मतलब आई सपोज वाई के अक्रॉस जो 2 पॉइंट्स है उनको ए और बी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। सर मैं वही कंसीडर करके किया था वाई के अराउंड ए और बी, बट फिर भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, छोड़ दो इसको फिर, आई थिंक इसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मिसिंग है, कुछ लिखा नहीं है ठीक से, जाने दो इसको, ओके सर ठीक है। दूसरा कोई डाउट है तो पूछ लो। दिवांशी तुम्हारा डाउट है 86, एक सेकेंड, 86 में क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड विद रेजिस्टेंस ऑफ 625 ओम इन द थर्ड आर्म and PQS are in the first arm. If P and Q are interchanged, the resistance in the third arm has to be increased by 51 to secure balance. तो दो कंडीशन लिख देना, पहले बैलेंस्ड है तो मतलब P by S इक्वल टू Q by 625 हो गया, बराबर। हाँ सर। और फिर क्या कह रहा है कि अब P और Q को इंटरचेंज कर दिया, रुको मैं कर लेता हूँ। ये ऐसे है, तो P Q S और 625 ये दिया हुआ है, और बीच में तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर होगा, तो उसमें हमें बैलेंस करना है, मतलब कि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 आ जाना चाहिए, वही कर रहे हैं। तो पहले वो बैलेंस्ड है, पहले बैलेंस्ड है तो पहले की कंडीशन लिख दो कि भाई P by S इक्वल्स टू Q by 625। फिर वो कह रहा है कि इनको स्वैप कर दिया, लेकिन स्वैप करने के बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा ऑब्वियसली। तो फिर उसको फिर बैलेंस करने के लिए जो थर्ड आर्म है जिसमें 625 है, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा 51 से, फिर बैलेंस आ जाएगा। मतलब सिंपल है, P और Q को तुमने स्वैप कर दिया है, तो अब कंडीशन इधर Q by S है और उधर P by, लेकिन 625 नहीं है, 625 प्लस 51 है, तो फिर बैलेंस हो गया, समझ गए? क्योंकि में अननोन रेजिस्टेंस है ना, किसमें अननोन को PQS तीनों अननोन है ना, सारे PQS तीनों ही नहीं पता है हमको, राइट? वो तुमसे S निकालने को बोल रहा है, दिया है ना कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आर्म में जो है P Q और S लगे हुए हैं, थर्ड आर्म में 625 है, तो पहले जो है बैलेंस हो गया है P Q S और 625 से, जैसे ये ड्राइंग बना था।
तो मैंने पहले की बैलेंसिंग की कंडीशन लिख दी, P बाय S इक्वल्स टू Q बाय 625, ये पहले। फिर उसने P और Q को स्वैप कर दिया, तो तुम्हारा ये सर्किट हो गया, तो बैलेंस खराब हो गया, यानी अब इधर सर्किट में करंट आ रही है बीच में, इट इज नॉट बैलेंस्ड एनी मोर। तो वो कह रहा है फिर से करंट बंद करने के लिए अब इसको जो है जब हमने इंक्रीज किया 51 से, तो फिर बैलेंस आ गया। तो वो कंडीशन मैंने लिख दी, Q बाय S इक्वल टू P बाय। अब तुम्हें वो कह रहा है S बताने के लिए, ऐसी तो पूछ रहा है, अननोन रेजिस्टेंस इन द फोर्थ आर्म व्हिच इज S। तो S कैसे निकालोगे इसमें से? डिवाइड बाय कर दो ताकि P और Q हट जाए, हाँ सर इसके बाद हो जाएगा। S आ जाएगा। ठीक है, ओके। हृदय तुम्हारा 65 है डाउन। Yes, sir. एक सेकंड रुको। सिक्सटी फाइव में कर लूं? सिक्सटी फाइव में देखो, ड्राइंग में जैसे बना हुआ है ना वैसा नहीं ट्रीट करना है। वो तो 1 ओम लगा दिया उन्होंने, बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो लिखा है वो करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये करना है कि प्रॉब्लम के हिसाब से ये करना है कि जो हर एक एज है ना वो खुद एक रेजिस्टर है 1 ओम का, मीनिंग टू से ऐसे करके हर एक पूरा वायर ही 1 ओम है, तो उसमें एक रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, समझ गए? Yes, sir. और फिर ए से ई तक तुमने कनेक्ट कर दिया है, और वो भी 1 ओम का है। यहाँ पे किसी जगह पे ई पे कनेक्ट कर दिया है ए से, फाइन। तो मान लो कि एक्स लेंथ पे कनेक्ट किया है, तो ये 1 माइनस एक्स हो गया, बराबर। Yes, sir. और एक्स को ही रेजिस्टेंस बोल दो, क्योंकि भाई अगर साइड को मान हम्म। लें कि तो रेजिस्टेंस ही मान लो इसको, तो ये 1 रेजिस्टेंस है, 1 रेजिस्टेंस है, 1 है, 1 है, ये एक्स है, ये 1 माइनस एक्स है, फाइन। Yes, sir. अब तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो ए और सी, यानी बैटरी लगेगी इधर और इधर, फाइन। Yes, sir. तो वो कह रहा है कि ऐसा करने से क्या हो रहा है कि बी और ई इक्वल पोटेंशियल हो जा रहे हैं, ये और ये। Yeah. तो यहाँ पे स्क्वायर की लेंथ कोई 1 मान लिया ना आपने? हाँ, बट सर अगर वो अज्यूम करते हैं तो ट्रायंगल ADE में x तो 0 हो जाएगा ना, अगर लेंथ को वैसे लेते हैं तो। क्यों? क्योंकि अगर पाइथागोरस लगाते हैं तो I नहीं स्क्वायर नहीं 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 नहीं, वो नहीं करना है। ओके। मैं समझ गया, तो प्रॉब्लम उस हिसाब से थोड़ा सा फालतू है, क्योंकि अब तुम अब अगर ये बोल ही रहे हैं कि यहाँ तो लेंथ के प्रोपोर्शन में रेजिस्टेंस लेना है, लेकिन क्लियरली इसकी लेंथ तो 1 नहीं है एई की, यस सर। तो एई कैसे 1 का हो सकता है फिर? तो फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगा। आई थिंक यही डाउट है। अब ये मुझे कैसे पता चला कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने उस पर लिख दिया है 1, है ना? प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ो, उससे करो डिकोड। ABCD इज अ स्क्वायर वेयर ईच साइड इज अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। तो ड्राइंग में तो उसको रेजिस्टर की तरह बनाया हुआ है जैसे सर्किट में होता है, लेकिन एक्चुअली क्या है, पहले ABCD की बात हो रही है, विच इज जस्ट द स्क्वायर, जिसकी हर एक साइड यूनिफॉर्म वायर है, जिसकी पूरी रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो उस लिहाज से जो है 1 1 1 1 हो गया। फिर क्या कह रहा है कि
अब उसने एक और यूनिफॉर्म वायर लाया जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो जब जब बोल दिया उसने कि उस वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो मेरे को मानना पड़ेगा, तो मे बी दिस इज अ वायर ऑफ अ डिफरेंट रेजिस्टिविटी, Yes, sir. so that even though it's shorter than any of the other 4 wires, it is still the same resistance as those wires. Make sense? Yes, sir. Obviously we can't argue with the problem statement, right? उसने बोला है 1 ओम है तो 1 ओम है। तो अब इसके बाद फिर तुम नहीं लगा सकते हो लेंथ का, लेंथ में जो रिलेशनशिप है वो फिर रेजिस्टेंसेस में नहीं है ना, क्योंकि रेजिस्टिविटी अनइक्वल है। मतलब Yes, ये sir. ये तीन जो है पाइथागोरस से रिलेटेड है वाया द ज्योमेट्री ऑफ लेंथ्स, but their resistances are not related to each other via the same relationship because of this problem of different resistivities. Yes, sir. Fine. तो अब कर लो बस, अब तो हो जाएगा। ये रेजिस्टर सीरीज में, ये और ये सीरीज में, इधर ये और ये सीरीज में, और फिर ये और ये सीरीज में होने के साथ इसके साथ पैरेलल में हो जाएंगे। समझ गए? Yes, sir. फिर कोलैप्स कर लो और बी और ई का पोटेंशियल इक्वलाइज कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो लग रहा है कि हो गया है। किसी और को भी डाउट है? रेजर तुम्हारा ये शायद 95 में डाउट है? Yes, sir. 95 क्या है? In the arrangement in the figure, when the switch S2 is open, the galvanometer shows no deflection for L/2. Switch S is open, ठीक है, S2 is open, ठीक है। When the switch S2 is closed, the galvanometer shows no deflection for this. Fine. तो दो कंडीशन दी हुई है। रुको इसको उठा लेता हूँ मैं इससे पहले। नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि जब स्विच एस, कौन सा स्विच, व्हेन स्विच S2 इज क्लोज्ड, तो तुम्हारा नल पॉइंट आ रहा है 5L/12 पे। नल पॉइंट याद है? Yes, sir. जब स्विच S2 ओपन है, सॉरी नॉट क्लोज्ड, जब स्विच S2 ओपन है तो नल पॉइंट L/2 पर आ रहा है। तो स्विच S2 अगर ओपन है तो ये किसी काम का नहीं है ना? Yes, sir. तो इतना ही सर्किट है अपना, जो स्टैंडर्ड गैल्वेनोमीटर सर्किट होता है। Hmm. तो तब तुम्हारा नल पॉइंट जो है वो आ रहा है L/2 पे। Yes. यानी ये वैल्यू उस समय L/2 है। तो ऑब्वियसली अगर तुम बोलो कि भाई हमारा पूरा वायर का रेजिस्टेंस, ए बी वायर का रेजिस्टेंस पूरा कुछ R है, तो ये वाला पार्ट उस समय R/2 है और ये वाला R/2 है। फाइन। Hmm. और सर्किट तुम्हारी लिटरली इतनी है उस समय कि ये 6 वोल्ट का बैटरी लगा है, फिर ये तुम्हारा R है जो पता नहीं है अभी, और फिर इधर में R/2 है, बराबर, Yes, sir. और इधर से ये है, और इसमें करंट ही नहीं है गैल्वेनोमीटर में, तो बेसिकली सेम पोटेंशियल। अच्छा, okay. फिर इधर R/2 है, ये वाला मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया इसको, और फिर इधर तुम्हारे पास ये E लगा हुआ है, और स्विच आई डोंट नो S1 का क्या, S1 तो बंद ही होगा प्रॉब्लली, S1 नहीं बंद होगा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो ये ऐसा है। हाँ तो सर, ये तो अब ये हो जाएगा। सर ठीक है। फिर S2 को ओपन कर लोगे तो बस ये अगला ये हो जाएगा कि 10 इसके साथ आ जाएगा पैरेलल में, मतलब ये एक अलग से सर्किट और आ जाएगी एडिशनल। Okay. ठीक है ना? Thank you, sir. ठीक है, ओके। ऑलराइट, तो एक्सरसाइज 1 तो हो गया हमारा। एक्सरसाइज 2 में बता दो किसी को डाउट है तो। Sir, exercise. One में 66. एक्सरसाइज 1 का 66।
In order to increase the resistance of a given wire of uniform cross section to 4 times its value, a fraction of its length is stretched uniformly till the full length of the wire becomes 3/2 times the original length. What is the value of this fraction? ठीक है, ये बेसिकली कह रहा है एक वायर है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, उसकी कुछ रेजिस्टिविटी है, तो उसका रेजिस्टेंस को हमें 4 टाइम्स करना है उसका करंट वैल्यू को. तो what then you have to do is, मान लो ये है, ठीक है, कुछ रेजिस्टिविटी ले लो, कुछ एरिया ले लो, कुछ लेंथ ले लो अभी फिलहाल. अब वो कह रहा है ये कैसे हम करेंगे, ये हम ऐसे कर रहे हैं कि इसका एक फ्रैक्शन को पीट पीट के पतला करेंगे और लंबा करेंगे. तो मान लो कि भाई इधर से x पे तुमने पकड़ा और फिर यहां से जो पार्ट है उसको तुमने पीट के पतला और लंबा कर दिया. मेक सेंस? Like this material is beaten into this narrow longer piece. Fine. Yes. Such that की total length is now 3/2 times the original length. ये भी लिखा हुआ है नीचे. Till the full length of the wire becomes 3/2 times the original length. बराबर. अब ऑब्वियसली इसको पीट के छोटा करने से इसका एरिया भी छोटा हो गया होगा, वो हमें नहीं पता है. लेकिन ये तो पता ही है कि भाई ये यही मटेरियल, ये वाला जो लॉन्ग नैरो पीस है, इसका मटेरियल वही मटेरियल है जो ये मटेरियल हुआ करता था, हाँ सर. क्योंकि उसको तो टच नहीं किया इधर. तो ऑब्वियसली वो वॉल्यूम कितना था, वो वॉल्यूम था, अज्यूमिंग डेंसिटी सेम रहा इसका, बस मैं एक तरीके से मास कंजर्व कर रहा हूँ, अज्यूमिंग डेंसिटी सेम रहा तो वॉल्यूम कंजर्वेशन कर रहा हूँ. तो ए एक्स वॉल्यूम पहले था और अब ए प्राइम इंटू व्हाट इज दिस लेंथ. दिस लेंथ इज टोटल इज 3/2L, उसमें से L माइनस एक्स माइनस कर देंगे. समझ गई क्यों? क्योंकि x ये था हाँ सर. तो ये L माइनस एक्स है इतना, तो टोटल तुम्हारा 3/2L है, उसमें से माइनस कर देंगे तो ये वाला लेंथ आ जाएगा इंटू ए प्राइम. तो इससे ए प्राइम मिल गया तुम्हें. फाइन, छोटा वाला एरिया ए प्राइम मिल गया. L पता ही है इसका, x x कितना हो गया ये, इतना ही लेंथ है इसका, तो इसका भी रेजिस्टेंस लिख लो. बेसिकली दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए ना ये, एक ये वाइड एंड शॉर्ट और एक लॉन्ग एंड नैरो. तो रो इंटू एल माइनस एक्स बाई ए इसका रेजिस्टेंस हो गया, प्लस रो इंटू कितना है ये जो भी इतना लेंथ, एल प्राइम कह देता हूं इसको, बाय ए प्राइम, इसका रेजिस्टेंस हो गया. एंड दिस मस्ट बी 4 टाइम्स द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, क्योंकि एजेंडा तो वही था अपना. तो 4 टाइम्स रो एल बाय. फाइन. हाँ सर. तो x के लिए सॉल्व कर लो. दो कंडीशन है तुम्हारे पास, एक ए प्राइम पे और एक ये 4 टाइम्स रेजिस्टेंस हो गया. और बता दो. सर एक्सरसाइज 4 का 4th. एक्सरसाइज 4 का 4. 4 का 4. ये कैसे Find- कोलैप्स करते हैं नहीं समझ आया. ये देखो सिमेट्री यूज करो, ए और बी के बीच में बैटरी लगाए, तो अगर ऐसा है this. ओहो, इसके लिए ये करना है कि यहां तुम बैटरी लगा रहे हो. फाइन. यस सर. तो ऑब्वियसली तुम देख रहे हो, मान लो यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट है, तो वुड यू से यहाँ 5 वोल्ट है. हाँ. फाइन. वुड यू से यहाँ 5 वोल्ट है.
Yes. and here 5. agreed. Hmm. Would you say कि यहाँ पे जो भी वोल्ट है यहाँ पे वही वोल्ट है Yes, sir. and same for here Hmm. and same for here Yes. and same for here. So basically if I take this part of the circuit and fold it onto this part, हाँ डबल हो जाएगा. तो ये यहाँ पे आके टच हो जाएगा, ये यहाँ आके टच हो जाएगा, ये यहाँ आके टच हो जाएगा, यहाँ और ये यहाँ आके टच हो जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वो पॉइंट्स का सेम पोटेंशियल है. तो मतलब ये ऑपरेशन अलाउड है, बराबर. लेकिन अब जब ये फोल्ड हो जाएगा तो नेचुरली अब तुम्हारे पास ये सर्किट बचेगी, ए बी सब फोल्ड हो गया है, तो ये ऐसा है और ये ऐसे है, इतना ही तो बचा है. Yes, sir. लेकिन अब अगर ये इंडिविजुअली 1 1 1 थे तो डू यू सी दैट ये 0.5 हो गया होगा, ये 0.5 हो गया होगा, ये 0.5, क्योंकि इन पे सब पे इनका एक काउंटर पार्ट उधर से आके पैरेलल में पड़ गया है. गेटिंग इट? अच्छा मैंने डबल कर दिया था. तो बस करेक्ट कर लो और ये 1 रह गए होंगे. हाँ यस सर. और इसके बाद भी तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि अभी भी थोड़ा गंदा ही है. अब तुम ये भी कर सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे 5 होगा अभी भी पोटेंशियल, और अगर इसको ऐसे डीकपल कर लें, समझ गए, यानी इसको अनअटैच कर लो ये पार्ट को, यस सर. तो भी वो बाय सिमेट्री उस पे 5 ही होना चाहिए. यस. तो यानी ये भी ऑपरेशन अलाउड है. फाइन. तो इसको अनअटैच करके इस पे फोल्ड कर दो. गेटिंग इट? यस सर. तो अब ये यहां से हट जाएगा और क्या हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? और हाफ. करेक्ट. ये हो गया. यस. बस हो गया. ये सीरीज में 0.5 0.5 1 और ये 0.5 के साथ पैरेलल, ये 0.25 सीरीज में हाफ और ये हाफ के साथ पैरेलल, ये 1 और हाफ के साथ पैरेलल, फिर ये सारे सीरीज में और ये उस 2 के साथ पैरेलल. यस सर. ओके. और Okay. आपने हाँ. 5 कैसे बोला था बीच में? क्योंकि 5 के अलावा क्या हो सकता है, मतलब ये तो है ही सिमेट्री ऐसे करके. अगर तू बोलेगी कि नहीं 5 नहीं है तो तू बोल रही है 4 है या तो बोल रही है 6 है. आई मीन टू से नॉट नेसेसरली दोज वैल्यूज, बट इफ यू से नॉट 5 देन ईदर इट्स मोर देन 5 और लेस देन 5. Agreed? So let's say you are going with more than 5. Let's say you are going with 6. पर सर हमें जब सिमेट्री में तो हमेशा ऐसे बैटरी प्लेन में ही लेते हैं ना, यहाँ वो पे अलग तो सिमेट्री है, वो अलग सिमेट्री है. दोनों अलग अलग टाइप की सिमेट्री. एक सिमेट्री इसके अबाउट है, ये शेप तो देख दोनों तरफ से सिमेट्रिक है ना, ऐसे और ऐसे. जो बैटरी वाला सिमेट्री है उससे मैंने ये आर्ग्यू किया कि ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल इक्वल है. वो लिटरल सिमेट्री है, लाइक लिटरली अ मिरर इमेज. हाँ. सो मैं इक्वालिटी कह सकता हूँ, दिस इक्वल्स दिस, दिस इक्वल्स दिस, दिस इक्वल्स दिस. दैट्स अ डिफरेंट सिमेट्री. व्हाट सिमेट्री आई एम यूजिंग इज नॉट दैट सिमेट्री. अगर मैं यहां से लाइन डाल रहा हूं तो इसके अबाउट में मिरर इमेज नहीं कह सकता हूं. आई एम नॉट सेइंग दिस इक्वल टू दिस. डू यू एग्री? अच्छा. Okay. Obviously, because this is closer to 0 volts and that is closer to 10 volts, so I can't say that this must be equal to this or this must be. This is not that kind of a symmetry. This is a different kind of symmetry. Obviously, shape में तो symmetry है ना इसके about. हाँ सर, पर तो उसका इलेक्ट्रिकल सिमेट्री, हाँ. electrical symmetry नहीं है, तो कुछ तो exploitation होगा shape के symmetry का. If not a direct literal exploitation where you say equal to, but there must be at least something. It can't be just like nothing. कुछ तो एक स्टेप तो होगा सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करने का. वो ये है कि हम ये कह सकते हैं बेसिकली दैट, हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि अगर यहां पे 0 है और यहां 10 वोल्ट है तो यहाँ पे 5 होगा, इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा. वो इस बेसिस पे कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे 5 नहीं होगा, ऐसा शेप है तुम्हारा, कोई भी सिमेट्रिक शेप ले लो, ये तो ये एक पर्टिकुलर शेप हो गया इन जनरल, बट आई एम सेइंग यू टेक एनी शेप. If you are saying here you have 10 and here you have 0, then if you are saying it is not 5, then you are saying it is something other than 5. Let's say you are saying it's 6. Then as per you, in potential, it is closer to what you are seeing on your left and further from what you are seeing on your right. Yes sir. Agreed? But now
if I flip the batteries and you go to the other side of the circuit, बराबर, हाँ तो this must have become 4 by flipping of the batteries, हाँ सर correct? एंड नाउ ये क्लोजर ये तो समझ रही है कि 6 का 4 क्यों हो जाएगा? उल्टी तरफ से देख रहे हो ना? नहीं नहीं, उल्टी तरफ से नहीं, दो चीजें मैंने की, बैटरी फ्लिप किया और उल्टी तरफ से देखा। उल्टी तरफ अभी छोड़ दे। डू यू अग्री कि किसी सर्किट में, कैसा भी सर्किट दिखता है, उसमें तो सिमेट्री की भी जरूरत नहीं है। मान लो एक सर्किट है, कुछ भी जनरल गंदा सा सर्किट है, जिसमें इधर 10 वोल्ट है उधर 0 है, हम्म, बराबर, और लेट्स से गंदा नहीं है, एटलीस्ट कुछ सिमेट्री है कि भाई इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है, जैसे हमारे सर्किट में, भले ही वैसे कितना गंदा हो, लेकिन उधर का चीज इसका मिरर इमेज है। ये समझ रहे हो? हाँ सर So that if you have 10 here and 0 here and you argue that this is 2, then this is 8. Why? Because you could flip this and then this should become 8 and this should become 2. हाँ सर तो बेसिकली बैटरी फ्लिप करने से क्या होता है कि जो भी तुमने वहां पोटेंशियल लिखा होता है उसका 10 माइनस आ जाता है वहां पे, है ना? हाँ तो भाई मैं कह रहा हूं कि तुमने पहले यहाँ 6 लिखा था, हाँ तो 10 माइन हाँ तो 10 यहाँ था, 0 यहाँ था। अब तुमने जब बैटरी, अभी पीछे नहीं गए, अभी बस बैटरी फ्लिप कर रहे हैं, तो बैटरी जैसी फ्लिप करके 0 और 10 किया, तो बाय दिस आर्ग्यूमेंट यहाँ 4 हो जाना चाहिए तेरे हिसाब से। हाँ सर लेकिन अब जब तू पीछे से जाके इस सर्किट को देखेगी तो ये तो वही सर्किट दिख रहा है जिसको पहले तूने लेफ्ट पे 10 था और राइट पे 0 था, और वहां तूने 6 बोला था ऊपर, लेकिन अब 4 है उधर, हाँ ऑब्वियसली कॉन्ट्राडिक्टिंग योरसेल्फ। हाँ सर समझा। सो द ओनली वे आउट ऑफ दिस इज कि वहां 5 हो, ताकि जब 10 माइनस 5 करते हैं 5 ही दिखे, पीछे से जाके देखें वही सर्किट दिखे जो आगे से दिख रहा था। हाँ सर बराबर? हाँ ठीक है, और Sir, कोई डाउट? 4 का 12th वाला भी कौन सा? 12 एक्सरसाइज 4 हाँ का 12, ठीक है। एक्सरसाइज 4 का 12, ये जो SRQP बना हुआ है ये वाला ना? नहीं नहीं सॉरी, ये तो IIT JEE का एक्सरसाइज आ गया। एक्सरसाइज 4 का है भाई, एक्सरसाइज 4 का 12। If the switches S1, S2, S3 in the figure are arranged such that the current through the battery is minimum, find the voltage across point A and B. देखो ये थोड़ा ऐसा है कि जिसका कुछ मैथ लिखने से नहीं होगा, थोड़ा सा केसेस लेके और दिमाग लगा के करना होगा। मतलब कि let's get it here first. हाँ, तुम चाह रहे हो इसमें कि तुम्हारा जो ये है करंट बैटरी के थ्रू वो मिनिमम हो जाए, है ना? तो अगर तुम्हें करंट बैटरी के थ्रू मिनिमम चाहिए तो ऑब्वियसली पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस तुमको लीस्ट चाहिए, लार्जेस्ट चाहिए, सॉरी, बराबर। अब सबसे पहले इधर देखो, अगर तुमने S3 को बंद कर दिया तो जब करंट इधर से आया होगा तो उसके पास दो रास्ते रहे होंगे, एक तो इधर से जाना विच इज द पैरेलल ऑफ 1 and 1 यानी टोटल हाफ, और एक S3 से जाना। अगर S3 बंद है तो सारा करंट S3 से ही चला जाएगा बिकॉज इधर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो यानी कि ये हाफ का जो रेजिस्टेंस सर्किट में आ सकता था वो पूरा बाहर चला गया अगर तुमने S3 को बंद कर दिया। So obviously you are decreasing the total resistance of the circuit, which you do not want, because keep in mind you are trying to decrease this current. So you want the maximum possible resistance in the circuit overall, meaning S3 must be open. Make sense? So that when current comes here, it doesn't go through here, but goes through the resistance. Similarly यहाँ पर भी है, अगर मान ले S2 भी बंद कर दिया तो जब करंट 6 ओम से इधर आएगा तो उधर और उधर से क्यों जाएगा जब जीरो रेजिस्टेंस का रास्ता है?
तो वो उधर 9 और 9 से क्यों जाए? तो तुम अगर S2 को बंद कर दोगी तो ये दोनों भी तुमने आउट कर दिए सर्किट से, which is again bad because you want more resistance in your circuit. So this must also be open. Make sense? Yes. एंड देन S1 तो सबसे एकदम वाहियात चॉइस हो जाएगा, क्योंकि अगर तुमने S1 बंद कर दिया तो जब तुम्हारा बैटरी का करंट यहाँ पहुंचेगा तो ये जो पूरा सर्किट है ये बाईपास कर देगा, वो क्यों जाए उधर से, इधर से चला जाएगा ना। हाँ सर। तो इसलिए S1 भी खुला होना चाहिए, यानी तीनों स्विचेस खुले हुए हैं। बस अब तो सिंपल है, ये 9 है, ये 9 है, पैरेलल में है, तो 4.5 इधर आ गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया और ये आधा हो गया। टोटल रेजिस्टेंस मिल गई सर्किट की, टोटल बैटरी पता है, करंट निकाल लो, करंट निकल जाएगा तो यहाँ पे आके उसको डिवाइड कर देना 2 में और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देना। ठीक समझा? Yes. यस सर। ओके, और कुछ? सर जब ऐसे कैपेसिटर सीरीज में एक के बाद एक ऐसे कनेक्टेड होते हैं तो प्लस माइनस ऐसे ऑल्टरनेट चलता है ना, पर फिर जब पैरेलल में आ जाते हैं दो, तो सपोज प्लस माइनस प्लेट है, फिर वो जो बाकी दो पैरेलल में उसमें प्लस प्लस ऐसे आना जरूरी नहीं है ना? नहीं, पैरेलल में प्लस प्लस आना जरूरी है ना। प्लस माइनस और फिर वो दोनों प्लस प्लस होंगे पैरेलल में जो है। हाँ, जब अल्टीमेटली वो फाइनली दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा ना, पैरेलल का मतलब वही होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर इक्वल हो गया तो नहीं सर, मेरे को कंफ्यूजन है किस प्लेट पे प्लस किस प्लेट पे माइनस, वो कैसे डिसाइड करते हैं जब पैरेलल का सिचुएशन होता है तो? हाँ मैं समझा, तुम बेसिकली उस टाइप का कह रही हो ना कि मान लो एक कैपेसिटर चार्ज है, एक अनचार्ज है, फिर उसको उसके साथ लगा दिया। हम्म। हाँ, तो भी देख वही होगा, अल्टीमेटली दोनों का प्लस वाला ही साथ में कनेक्ट होगा। मतलब मान लो भले ही तुमने ऐसा कर दिया, लेट्स से तूने एक कैपेसिटर लिया जिसके इस प्लेट पे +10 है और इस पे -10 है। हाँ, फिर इससे पैरेलल में दो कनेक्टेड है, मतलब अब तुमने ऐसे। इसके साथ एक लगाया, एक ले लो, कॉन्सेप्चुअली सेम ही बात है, जिसमें इधर +50 है और इधर -50 है, ऐसा ही कुछ कह रही हो। हाँ सर। तो अब फाइनल आउटकम क्या होगा, ये तो पूछ रहे हैं। फाइनल आउटकम हर हालत में ये होना चाहिए कि दोनों की इस प्लेट पे सेम पोलैरिटी हो और इस प्लेट पे सेम पोलैरिटी हो। प्लस माइनस किधर आएगा वो देख लेंगे अभी, लेकिन अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस होना चाहिए और ये प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक पूरे रीजन में एक ही पोटेंशियल होता है, तो ये तो होना ही चाहिए कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप सेम आ रहा हो। वो याद है ऐसे हम बनाते थे। हाँ सर। तो यही तो फाइनल आउटकम है, ऐसा ही हो सकता है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि भाई ऐसा है बट समहाउ ये प्लेट नेगेटिव है इस कैपेसिटर के लिए, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है और ये इसकी नेगेटिव प्लेट है, सो दैट इसमें फील्ड इधर है, मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप ऐसे आ रहा है, लेकिन समहाउ ये इसकी पॉजिटिव प्लेट और वो उसकी नेगेटिव प्लेट है। भाई ये कैसे हो पाएगा? ये तो वो जो इम्पॉसिबल वो नहीं होते वाटरफॉल टाइप कि पानी यहाँ से भी गिर रहा है और यहाँ से भी गिर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम चल रही हो नीचे उतर गई, फिर तुम चल रही हो नीचे उतर गई और फिर वहीं आ गई जहां से नीचे उतरी? सर अगर बीच में कैपेसिटर लगा ले जिसकी हाँ पोलैरिटी, सर, जो ऊपर वाला कैपेसिटर बनाया आपने उसके बाजू में एक और फिर उसके नीचे एक, मतलब यहाँ पर कि उधर ही? सर उसके बगल में ऊपर वाला, उसके साथ सीरीज में हाँ, और फिर उसके नीचे एक ऐसे पैरेलल में? नोड एनालिसिस में एक्स का नोड जो 3 जंक्शन है वैसा वाला सर, यहाँ पे एक और फिर उसी के बीच में एक, दो कैपेसिटर के बीच में एक और। हाँ सर, वही पे एक लाइन बना। हाँ हाँ सर, ऐसे बीच में एक। हाँ ठीक है, ये कह रही हो? हाँ सर, उसमें चार्जेस कैसे प्लस में? हाँ तो भी उसमें क्या टेंशन है? देख अब ये दोनों तो पैरेलल में है ना आपस में। सर मेरे को प्रॉब्लम आती है टोटल क्यू निकालने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो प्लस माइनस कैसे डिसाइड करते हैं? कोई प्रॉब्लम बताओ ना, तो आई थिंक बेटर होगा। कोई एक प्रॉब्लम बताओ, फिर मैं बता दूं कैसे कर रहे हैं। सर ठीक है, फिर मैं क्लास में आपको पूछती हूँ, नेक्स्ट क्लास में। क्लास में पूछ लो, नहीं तो बाद में मिल जाए तो व्हाट्सएप कर देना, ग्रुप पे डाल देना। ठीक है। ठीक है।
ठीक है, चलो फिर एनी अदर डाउट खत्म करें? नो सर, थैंक यू। ठीक है, चलो गाइस, बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।